السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ۔ تلاوت ہوگی آیت 13 سے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 13 سے ہم پڑھیں گے۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر چاہے ہم۔ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پچھلی آیتوں میں آپ کو یاد ہے ہم پڑھے تھے موت کے بارے میں، کہ کیسے آئے گی موت ایک مومن کے پاس اور ایک کافر کی موت کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور ہدایت اور توحید والی موت عطا کرے انشاءاللہ، اور ہماری زندگی بھی اسی پہ قائم ہو۔ آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر چاہے ہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَآتَيْنَا، بے شک عطا کرے ہم، بے شک دے ہم، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، کیا دے ہم؟ ہداہا، اس کی ہدایت۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کو ہدایت دے دے، کوئی بھی ہدایت کے بغیر نہ رہے۔ ولیکن، اور لیکن، بٹ what is this لیکن؟ حق القول، حق ہو گئی بات، سچ ہو گئی بات، کس کی؟ منی، میری طرف سے، اللہ کی طرف سے بات حق ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہی اللہ نے کیا۔ کیا کیا؟ کہ اللہ نے ہر ایک کو زبردستی ہدایت نہیں دی،
इसे क्या रखा है, फ्री चॉइस, फ्री विल, जो चाहे वो हिदायत ले ले, अल्लाह की किसी को जबरदस्ती नहीं है। फिर आगे क्या फरमाए, लअम्लअन्न, बेशक मैं जरूर भर दूंगा, ल का मतलब बेशक, अ का मतलब मैं, मिल कहते हैं भरने, और नून पर है तशदीद, यानी जरूर ब जरूर, श्योरली आई विल फिल, मैं भर दूंगा, किसको भर दूंगा, जहन्नम, जहन्नम को भर दूंगा, किससे, मिनल जिन्नती वन्नासी, जिन्नों से और इंसानों से मैं भर दूंगा जहन्नम को, अजमाइन, इकट्ठा, जमा वर्ड है इसमें, ऑल टुगेदर, जिन्नात और इंसान सारे के सारे जहन्नम में भर दूंगा। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये हमने पिछले आयतों में पढ़े थे कि जब मुजरिमीन, जो मुजरिम होंगे वो कयामत का दिन देख लेंगे, जहन्नम को अपने सामने देख लेंगे, तो वो क्या कहेंगे, बताइए मुझे, पिछली आयत में क्या पढ़े हमने, वो कैसे खड़े होंगे, ऐसे तो नहीं हो रहा है कि हम पिछला पढ़ रहे भूल जा रहे आगे बढ़ रहे, बताइए सलमा, कैसे खड़े होंगे सर और सिपाही कहाँ खड़े खड़े होंगे होंगे, और अल्लाह सुब्हान व तआला से कहेंगे कि एक बार फिर वो दुनिया में भेजे हमको। कहाँ खड़े होंगे, बताइए बेटा। तो जहन्नम के पास ही खड़े होंगे भाजी। और जब जहन्नम को देख लेंगे, तो फिर कहेंगे कि हमको फिर एक बार भेजो, अभी हम ये इबादत करेंगे, हमने सुन लिया और मान भी लिया। ओके, यानी देखने के बाद यकीन आएगा हाँ, मुजरिमों को, और वो कैसे खड़े होंगे, सर झुकाए। सर झुकाए खड़े होंगे, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो कहीं हमारा शुमार इन मुजरिमों में ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें दुनिया में हिदायत का इंतजाम कर दिया, लेकिन अल्लाह ने किसी पर भी हिदायत जबरदस्ती नहीं थोपी। अल्लाह ने फ्री विल रखा है कि जो चाहे हिदायत का रास्ता चुने, उसे माने और उसी रास्ते पर यानी सिराते मुस्तकीम पर चले, और जो ना चाहे, कि अल्लाह ने किसी के साथ जबरदस्ती की है, ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये अल्लाह का तरीका नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, ला इकराहा फिद्दीन, नहीं है दीन में कोई जबरदस्ती। तो अल्लाह ताला ने फ्री विल दे के रखा है, लेकिन साथ साथ हमारे लिए, देखिए अगर हमने कुरान नहीं भी पढ़ा है, जिस किसी ने कुरान नहीं भी पढ़ा है, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने तुम्हें दे दी आंखें, कान, दिमाग, दिल। तो आपको पता है ये आईज, ईयर्स, ब्रेन एंड हार्ट, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, दे आर डोर्स टू गाइडेंस, ये हिदायत की दरवाजे हैं। कि क्या हमें नजर नहीं आता कि एक बच्चा पैदा होता है और कैसे पैदा होता है, और बारिश कैसे बरसती है, और सूरज निकलता है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, कोई तो है सुपर पावर। तो क्या इतनी भी अकल नहीं हमारे पास, इतना भी दिमाग नहीं कि इन अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करे और अपने रब को पहचानने की कोशिश करे, और यही तो है हिदायत। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए हर पल, हर दिन आजमाइश और हर दिन अपॉर्चुनिटीज भी दी है, मौका भी दिया है कि हम हिदायत पाए। फिर अल्लाह ने हर जमाने में नबी और रसूल भेजे, हिदायत के लिए किताबें नाजिल फरमा दी। तो अल्लाह ने अपना काम तो कर दिया, अब ये तुम्हारे जिम्मे है कि तुम अल्लाह की इस हिदायत को मानो, एक्सेप्ट करो, उस रास्ते पे चलो या ना चलो। ठीक है, अल्लाह के हिदायत की बहुत सी झलकियां हमें दुनिया में भी नजर आती, चाहे कुरान पढ़े या ना पढ़े। जैसे अगर हम देख ले दुनिया का डिसिप्लिन, बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो एक स्कूल का डिसिप्लिन होता है या नहीं होता है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स लॉज ऑफ द स्कूल।
اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہو، تو وہاں پر ان کے قاعدے قانون ہوتے ہیں. تو جیسے ہر انسٹیٹیوٹ کا اپنا ایک لا بک ہے، ویسے یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس نے اپنی ایک لا اینڈ آرڈر کی کتاب بنا دی کہ جو اس لا اینڈ آرڈر کو فالو کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو نہیں کرے گا پھر اسے پنشمنٹ تو ہوگی، اس کا حساب کتاب تو ہوگا. اللہ اکبر. اس آیت میں کس کا ذکر آیا ہے؟ انسان سے پہلے جنات کا ذکر آیا ہے. ایسا کیوں؟ اللہ نے ایسے کیوں نہیں فرمایا والناسی والجنتی، من الناسی والجنتی؟ پہلے جنات کا ذکر کیوں، بعد میں انسان کا ذکر کیوں؟ کیونکہ بھجی انسان سے پہلے جنات کو بنایا. ویری گڈ. انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو بنایا. اور انسان اور جنات کو اللہ نے کیوں بنایا؟ قرآن کی ایک آیت کیا کہتی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے اللہ کی. وَخَلَقَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہے نا؟ اور اللہ نے بنایا ہے جنات اور انسان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کیا کرے؟ عبادت کرے. عبادت کرتے ہیں یا نہیں، یہی امتحان ہے. اب عبادت کا مطلب کیا؟ پورا دن نماز روزہ اور تسبیح کرنا ہے؟ کیا ہے عبادت کا مطلب؟ ایک ڈیفینیشن ہم نے بنائی ہے عبادت کی. ورشپ پلس اوبیڈینس 24/7 پر. یس، عبادت کا مطلب صرف اللہ 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 نہیں کرنا ہے. عبادت کا مطلب ہے اوبیڈینس پلس ورشپ. پورا 24 گھنٹہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اور عبادت بھی یعنی جیسے اس نے ہمارے لیے عبادت کا طریقہ سنت طریقے سے بتایا ہے وہ کرنا ہے. تو پھر وہ ہو گئی کمپلیٹ عبادت. اور وہ جنات کے لیے بھی انسان کے لیے بھی. جو یہ نہ کرے گا وہ سب جہنم میں بھر دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. کیا دعا پڑھیں گے اس موقع پر؟ کیا ہے سنت طریقہ کہ قرآن میں جب جہنم کا ذکر آئے تو کیا دعا پڑھیں؟ اللہم اجرنی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم لا تجعلنا منہم. یا اللہ مجھے ان میں سے نہ کرنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہر روز ہر شام سورہ سجدہ پڑھتے وقت کتنے لوگ رکتے ہیں ان آیتوں پر اور یہ دعائیں کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے پلیز. نہیں کرتے نا؟ کون سی سپیڈ میں بھاگتے ہم لوگ؟ ماشاءاللہ 2 لوگوں کا ہاتھ اوپر ہے آؤٹ آف 57. 3 ویری گڈ الحمدللہ. تو اگر ہم پڑھ کر سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو ضرور رکیں گے، اور ہمیں خوف ہوگا اور ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اور سدھرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. 3-4 ہاتھ اوپر ہیں. ابھی آج سے ہم یہ معمول بنائیں گے کہ ہم رکیں گے، دعائیں کریں گے، سمجھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے، فَذُوقُوا، پھر چکھو تم سب. فَذُوقُوا میں کیا ورڈ ملتا ہے آپ کو؟ ذائقہ، چکھنا، ہے نا؟ دنیا میں تو ہم کو ذائقے کی بڑی طلب ہے نا؟ ذائقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین ٹیسٹ. کیا ٹیسٹ کرو تم سب؟ کیا چکھو؟ ہمیں تو ہر چیز چکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے دنیا میں. اور چکھتے کس سے ہے ذرا بتاؤ؟ ہم ہماری زبان سے چکھتے ہیں، ہے نا؟ اور زبان، کیا زبان پر سکن ہے؟ Does our tongue have skin؟ نو بھجی. نہیں ہوتی. ہوتی یا نہیں ہوتی زبان پر سکن؟ بتاؤ.
कोई बताएगा? होती होती है नहीं होती? होती है। होती है। सना? देखिए हमारी जबान पर स्किन होती है, वो वैसी स्किन नहीं होती है जैसी हमारी बॉडी पर होती है। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को एक अलग झिल्ली से, एक अलग स्किन से कवर किया हुआ है, और हमारी जबान पर भी एक अलग तरह की झिल्ली है। और ये जो हमारी जबान है, अल्लाहु अकबर, दिस इज द मोस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे ज्यादा सेंसेस इस पर है। कैसे? क्योंकि आप देखिए आपके हाथ पर भी स्किन है, और अगर आप अपने हाथ पर, हथेली पर नमक रखो तो आपको फील होता है कि आपने नमक रखा, नजर भी आ रहा है, पर क्या आपको पता चल रहा है इसका टेस्ट कैसा है? अच्छा नमक हटा दो, अब शक्कर रखो, तो आपको फील होता है हाथ पर, हथेली पर, कि ये मीठा है या नमकीन है या तीखा है, या हाँ अगर गर्म है या ठंडा है तो आपको जरूर आपके हाथ हथेली पर फील होगा। लेकिन मीठा है या खट्टा है या नमकीन, क्या ये फील होगा आपकी हथेली पर? आपको फील नहीं होगा। लेकिन आपकी जबान को ये सारे जायके, ये सारे टेस्ट पता है। कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। बच्चा पैदा होता है वैसे ही, आप उसे मीठा दो तो वो चटक जाएगा, और अगर आप उसे तीखा दो तो वो चिल्लाएगा, और अगर आप उसे कड़वा दो तो फिर उसका आप एक्सप्रेशन देख लीजिए कैसा एक्सप्रेशन होता है। अब अल्लाह ताला हमें क्या चखने के लिए कह रहे हैं? अब हमने देख लिया कि जबान जो है वो कैसी है चखने के। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं चखो तुम सब, बिमा नसी तुम, क्योंकि, बीमा का मतलब लिख लीजिए, क्योंकि, बिकॉज, नसी तुम, भूल गए तुम। किसको भूल गए तुम? लिका, मुलाकात को, लिका, मुलाकात को, यौमिकुम, उस दिन की मुलाकात, हादा, उस, तुम्हारी मुलाकात उस दिन की, उसे तुम भूल गए, इस वजह से चखो। क्या चखो? वो तो बताए नहीं हमको। तो इसके पिछली आयत में आ गया ना कि जहन्नम में भर देंगे हम तुमको। तो जहन्नम में क्या है? अजाब, आग। तो तुम चखो जहन्नम का अजाब, जहन्नम की आग को चखो। अभी जहन्नम की आग को चखने की वजह यहाँ पर बताई गई। सो व्हाट इज द रीजन? बिमा, बिकॉज, नसीतुम, यू फॉरगॉट, लिका, you forgot the meeting, यौमिकुम हाजा, ऑफ दैट डे। अल्लाहु अकबर। कौन से दिन की बात हो रही है? कयामत के दिन की बात हो रही है, आखिरत की बात हो रही है, कि आज हमें पता चला क्या है वजह जहन्नम के आग, जहन्नम के अजाब की वजह ये है कि जो कोई भुला देगा अल्लाह की मुलाकात को, और भुला देने की वजह क्या हो सकती है वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी सजा क्या है कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए एक फाइनल मीटिंग स्केड्यूल करके रखी है। ऑलरेडी वो मीटिंग अल्लाह ताला ने फिक्स करके रखी है। और किसके साथ है ये मीटिंग? अल्लाह के साथ। मैं मिलूंगी अल्लाह से उस दिन, रूबरू, आमने सामने। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला का पर्दा होगा, कितना होगा, कैसा होगा, वी डोंट नो। हमें बताया गया है कि उस दिन पूरा पर्दा नहीं खुलेगा, बट वो मुलाकात का दिन तो होगा, क्योंकि वो है मालिकी यौमिद्दीन। कहाँ पढ़ चुके हम? सूरह फातिहा में। और ये दिन कैसा दिन है? कयामत का दिन अटल। अटल यानी क्या? कि ना इसे झुटलाया जा सकता है, ना हटाया जा सकता है, ना आगे किया जा सकता है, ना पीछे, ना कैंसल। दिस इज अ स्केड्यूल्ड मीटिंग बाय अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इस दिन को भूल जाए, अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं भूलने की क्या क्या वजह होती है? कौन सी चीज भुलाई जाती है?
آپ کی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ وزٹ آپ نے فکس کر کے رکھی ہے، کیا آپ اس کو بھولو گے؟ اگر آپ بیمار ہو، تکلیف میں ہو تو بھولو گے؟ No. نہیں بھولیں گے. اگر آپ کے بچے کی اسکول کے ایڈمیشن کی میٹنگ ہے اسکول میں، آپ بھولو گے؟ No. اگر آپ کے آفس کا کام ہے اور آپ کے باس کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے تو آپ بھولو گے؟ نہیں بھولو گے. اگر آپ کی سمجھو بائی چانس آپ کی پہچان ہو گئی ہے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کی ایک میٹنگ فکسڈ ہے، بڑی مشکل سے ہی آپ کی میٹنگ، ہر ایک کی ہوتی بھی نہیں ہے، تو اگر وہ میٹنگ سکیڈولڈ ہے تو کیا آپ کسی حال میں اس میٹنگ کو بھولو گے؟ اس کی کتنے دنوں پہلے سے تیاری کرو گے کہ آپ کو پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، پرائم منسٹر سے ملنا ہے؟ بتائیے. Never. نہیں بھولیں گے. اگر آپ کی شادی ہے اور آپ کو شادی کے ہال میں پہنچنا ہے، آپ کا نکاح ہے، آپ بھول جاؤ گے؟ No. تو یہ جو ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی میٹنگ اپنے رب کے ساتھ فکسڈ ہے، تو اسے بھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کنیز؟ کیا ہم افورڈ کر سکتے اس کو بھولنا؟ بالکل نہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں نا. کیا ہم کو روز یاد رہتی ہے؟ روز یاد نہیں رہتا. ہر وقت یاد رہتا ہے؟ No. بالکل نہیں. ہر روز بھی یاد نہیں آتا، ہر وقت بھی یاد نہیں آتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دیا کہ جو بھول گیا اپنے رب سے ملاقات کے اس دن کو، اور بھولنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، پرائرٹی نہیں دیتے. اچھا وہی بات ہے کہ سمجھو آپ کی کام والی ہے، آپ کی میڈ ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی وہ کوئی دوسرے کام والی ہے، وہ پوچھ رہی ہے کوئی کام ہے کیا، تو آپ بولو گے بول دو اس کو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. بولو گے بھائی وہ بہت ضرورت مند ہے، پلیز اس کو آپ ذرا دیکھ لو. تو آپ کہو گے اچھا اچھا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم ایسا کرنا کل پرسوں اس کو بلا لینا. اور پھر آپ بھول بھی گئے اس کو، اور پھر وہ آ کر کھڑی ہو گئی، آپ پوچھو گے یہ کون ہے، کیا کام ہے تمہارا، پھر وہ آپ کو یاد دلائے گی. تب آپ کو یاد آئے گا، آپ کہو گے اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ابھی میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. تم ایسے کرو کہ کہیں اور کام ڈھونڈ لو. وائی آپ نے اتنا، جو آپ کو پرائم منسٹر کی میٹنگ، ڈاکٹر کی میٹنگ، اسکول کی میٹنگ، وہ جتنی امپورٹنٹ تھی، اس میٹنگ کو آپ نے کیوں امپورٹنس نہیں دیا؟ بیکاز وہ آپ کے کام نہیں آنے والی تھی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے. کیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں؟ دن رات اس کی ضرورت ہے. اس کی نعمتوں کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں، خوشحال ہے، اور اسی رب کی ملاقات کو بھلا دیا. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر روز ہر پل اس بات کو یاد کریں کہ واپس لوٹنا ہے میرے رب کے پاس. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے جو روز ہمیں یاد دلائے؟ کون ہے جو روز ہمیں یاد دلائے؟ ورنہ ہم تو ایسے بھلکڑ ہے کہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہر روز، پھر بھی نماز کیا ہے؟ ہماری اللہ سے ملاقات کی پریکٹس ہی تو ہے. تو ہر روز جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، کیا اللہ سامنے نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کیا اس کو یاد بھی کرتے ہیں نماز میں، یا بس کھڑے ہو گئے، ٹونگے مارے، ہاتھ باندھے، سجدے میں گئے، سلام پھیرے، ختم، ریچول پورا کر دیا؟ کیا نماز میں اللہ کی یاد آتی ہے؟ کیا نماز میں اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ہم؟ اگر ہوتے ہیں تو ہر نماز پھر ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اس ملاقات کا جو ہونے والی ہے اس دن. اللہ اکبر. اگر ہماری نماز میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ خالی ہے، تو پھر سن لو آگے کیا فرمایا اللہ نے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا جواب سنیے. انا بے شک ہم، نسیناکم بھول گئے ہم تم کو.
भुला दिया हमने तुमको. क्यों? क्योंकि तुमने भुला दिया अपने रब की मुलाकात को, तो बेशक अब हमने भी भुला दिया तुमको. अल्लाहु अकबर. तो अब क्या है? तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हें भूल गया. गिव एंड टेक. वज़ुकू, और अब चखो तुम सब अजाबल खुल्दी. क्या चखो? अब बता दिया क्लियरली. अजाब पनिशमेंट, अल खुल्द हमेशगी का, परमानेंट अजाब, नेवर एंडिंग परमानेंट, कभी ना खत्म होने वाला अजाब अब तुम सब चख लो, चखो. क्यों? बिमा कुंतुम. अब एक और वजह बता दी गई. क्या है वो वजह? बिमा कुंतुम, बिकॉज थे तुम, ताअमलून, जो तुम अमल करते, जैसे तुम्हारे अमल थे उसका रिवॉर्ड, उसका बदला यही है कि चखो अब तुम इस अजाब. जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह. तब समझ आ गई कि अल्लाह ताला को कोई शौक नहीं है, कोई खुशी नहीं मिलती कि वो अपनी मखलूक को, चाहे इंसान हो या जिन्नात, उनको जहन्नम में भर दे, उनको जहन्नम का अजाब चखाए. बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स. तो हमें इस आयत में कौन से 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले? फजुकू, सबसे पहले चखो, इस वर्ड को सर्कल कर लो. उसके बाद किस वर्ड की इंपॉर्टेंस है? कि अल्लाह की मुलाकात को भुला दिया, इसे भी सर्कल कर लो. तो फिर नेक्स्ट क्या है? फिर अल्लाह ताला फरमा दे फिर मैं भी भूल जाऊंगा तुमको. तुमने मुझे भुला दिया तो मैं भी तुम्हें भुला दूंगा. अल्लाह अकबर. अल्लाह हमें भुला दे तो हमारा क्या हो, जस्ट इमेजिन. और नेक्स्ट वर्ड क्या है? चखो अजाब जहन्नम का, जो कभी ना खत्म होने वाला. क्यों? ताअमलून, जो तुम अमल करते हो उसकी वजह से. अब एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि ये जो जहन्नम की आग है ये तुम्हारे गुनाहों ने ही भड़काई है. फुल स्टॉप. ये जो जहन्नम की आग है ये तुम्हारे गुनाहों ने ही भड़काई है. अल्लाहु अकबर. तो अब हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारे अमाल कैसे, हमारे अमाल है कैसे. क्या हम अल्लाह के रूल्स, अल्लाह की दुनिया में रहते या नहीं रहते? बताओ पहले. किसकी दुनिया में रहते? किसकी दुनिया है? जमीन आसमान. बार बार अल्लाह ताला क्या फरमाते? किसने बनाया ये जमीन आसमान? किसने बनाया? अल्लाह सुब्हान तआला ने. तो ये दुनिया किसकी है? बेशक अल्लाह की है. तो फिर इस दुनिया में कानून किसका चलेगा? अल्लाह ताला का ही चलेगा बस. और अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा फिर? तो वही तो हमारे अमल है कि हम नहीं मानते, हम भुला देते हैं अल्लाह को. अब भुलाने की एक और वजह क्या है? अब आप लोग मुझे बताएं कि अल्लाह को भूल जाने की, उस कयामत के दिन को भूलने की एक सबसे बड़ी वजह क्या है? बताइए. आप लोग सब सोच के बताइए. सुरैया बोलो. बाजी हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हमको दिख भी नहीं रहा है ना बाजी. अल्लाह दिख नहीं रहा है इसलिए. ओके. सेकंड, शाहीन. डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड बोलते हैं हमारे आसपास जो भी हम जी. हसीन, हसीना. दुनिया की मोहब्बत बाजी, दुनिया में घुल वेरी गए, गुड, एकदम खो गए. वेरी गुड. दुनिया की मोहब्बत. शगुफ्ता. डिस्ट्रैक्शन. शाहीन आपकी आवाज अटक रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो आई एम म्यूटिंग यू. शगुफ्ता आप बोलिए. शमीम. जी वही कहना था कि हम दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गए, दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो गए.
ये दुनिया में डिस्ट्रैक्ट हो गए का मतलब बताएंगे जरा सा? बाजी पैसा कमाने में, एंजॉय करने में, ये सब चीजों में, औलाद में गुम हो गए, हर चीज में। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना शमीम, ये जो अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर कि जहन्नम का अजाब परमानेंट है, तो वैसे दुनिया को हम क्या समझते हैं कि यही हमारी परमानेंट लाइफ है ना? हाँ शगुफ्ता, आप बोले। बस बाजी मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हम दुनिया की मसरूफियत में, मशगूलियत में इतने मसरूफ हो गए कि हम वो सोचना ही नहीं चाहते हैं कि हमको आखिरत का दिन फेस करना है। एग्जैक्टली शगुफ्ता, आप वही हो, मुझे उस दिन कॉल किया था आपने। ओके सुरैया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाँ, हम दुनिया में गुम हो गए हैं, अपनी औलाद में, अपने कामों में बिजी है। वेरी गुड। तो आप सब वही कह रहे हो कि दुनिया, और आपका जवाब भी सही है, लेकिन हम दुनिया में इसलिए गुम हो गए कि हम समझते हैं, अब इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा ना। इलाज ये है कि हम समझते हैं कि दुनिया हमारी हमेशा हम यही रहने वाले, तो इतना सामान जमा कर रहे हैं, इतनी तैयारी, इतने बिजी हम, मसरूफ किसी ने कहा, वे आर सो बिजी विथ एवरीथिंग एज इफ ये सब परमानेंट है। लेकिन क्या हमें नहीं पता ये परमानेंट है या टेम्पररी है दुनिया? कैसे पता चलता है? क्या हमने नहीं देखी इतनी मौतें हो रही है हमारे दादा दादी जिंदा, उनके फादर है कोई? बादशाहों के तो कितने ठाठ होते हैं और कितना आराम होता है, क्या वो जिंदा है? तो जब हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी इस दुनिया में गुम हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर क्या चीज, अभी हमें सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम तो हमको नजर आ गया, अल्लाह ने भी बता दिया, तो सोल्यूशन क्या है अब वो आप बताइए मुझे। व्हाट इज द सोल्यूशन? है किसी के पास कोई इसका जवाब, कोई रास्ता कि कैसे हम अपना फोकस दुनिया से आखिरत पर ले जाए? सना बोलो, सुरैया बोलो। बाजी कोई रिमाइंडर करने वाला हो, जैसे कि अभी बाजी Very हमको good. ये रियलाइज करना है कि ये हमारा परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है और ये सब सिर्फ फानी है, कल को फना हो जाएगा। रियलाइजेशन थोड़ी देर ही रहता है। देखिए सोल्यूशन सुरैया ने हमें बहुत सही बताया। सोल्यूशन ये है कि रिमाइंडर चाहिए रोज, इसीलिए अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज हमारे लिए फिक्स कर दी, फर्ज कर दी कि 5 वक्त नमाज में तुम अपने रब के सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हें याद आ जाए। लेकिन हम लोग इतने क्या कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम लोग इतने स्टबर्न हो गए कि नमाज भी पढ़ते हैं तभी भी अल्लाह याद नहीं आता, तभी भी कयामत याद नहीं आती, तो फिर क्या करे? तो इसीलिए 2 काम करने, हमको 2 रोल प्ले करने। नंबर 1, हमें खुद को रिमाइंडर्स देने हैं दूसरे लोगों को, दूसरों को याद दिलाते रहना है। जब हम दूसरों को याद दिलाते हैं तो खुद को भी याद दिलाते हैं, बराबर। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 सोल्यूशन कि हम ऐसे महफिल में ऐसे लोगों के साथ रहे कि वो भी हमें याद दिलाते रहे। तो हमें दूसरों को याद दिलाना है और दूसरे हमें याद दिलाए, ऐसे लोगों के साथ रहना है, ना कि उन लोगों का साथ चाहिए कि जो हमें और दुनिया में बिजी कर देते हैं, जो दुनिया की ही बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजारना है, वरना वो हमें फिर दुनिया में ही बिजी कर देंगे। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस अ राइट सोल्यूशन? जी बाजी, हमको ऐसी कंपनी में रहना है जो हमको अल्लाह के करीब लेके जाए बाजी, ना कि Yes. अल्लाह से। रिमाइंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अभी बच्चे भी हमसे बात करते हैं ना, अपने बच्चों को कौन रिमाइंडर देगा? हमें ही देना है। उनको बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन लगने दो। अभी बच्चों की एग्जाम आती है तो हम क्या करते हैं? हमें पता है ना कि जब बच्चों की एग्जाम आती है, पूरा साल वो पढ़ाई नहीं भी करते, लेकिन उनको कौन याद दिलाते रहता है सुरैया कि तुम्हारी एग्जाम आ रही है, देखो अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, देखो अभी नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, अब तो तुमको पढ़ना है, चलो लाओ बुक लाओ, मैं तुमको पढ़ाती हूँ, मैं तुमको प्रिपेयर करवाती हूँ। करवाते या नहीं हम लोग?
वैसे उनको क्या अच्छा खुशी होती है बच्चों को सुरैया? नहीं बाजी, बिल्कुल नहीं। तभी भी हम उनको करवाते हैं। और अभी अभी एक डिफरेंस देख लीजिए, दुनिया की एग्जाम का टाइम टेबल हमारे पास होता है, डेट हमारे पास होती है, लेकिन आखिरत की एग्जाम का कोई टाइम टेबल है हमारे पास? इसका जवाब कौन देगा मुझे? क्या आखिरत के एग्जाम का टाइम टेबल हमारे पास है? नहीं है बाजी, लेकिन हमारी मौत ही हमारे लिए कयामत शुरू। नहीं, आई वॉन्ट द बाजी राइट आंसर। यस फातिमा। मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि कुरान है, कुरान में बताया गया है आखिर के बारे में। ओके तो ओके, और कोई मुझे बताएगा कि क्या आखिरत का टाइम टेबल हमारे पास है? माय क्वेश्चन, शगुफ्ता। टाइम टेबल तो नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट है कि कयामत यानी आखिरत आने वाली है, तो उसके लिए ओके, हमको तैयारी अपना करनी खुद है। लेना है। वेरी गुड, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बरकरार है। आई एम नॉट गॉट द राइट आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर। जैनब। आखिरत का टाइम टेबल तो नहीं बाजी, बट हमारा आई थिंक एवरी डे एनालिसिस इज इन आवर वेरी हैंड। गुड, वेरी गुड जैनब, दिस इज द राइट आंसर कि हमारी एग्जाम तो हर रोज है। देखिए स्कूल की एग्जाम 6 महीने में एक बार होती है, 3 महीने में एक बार होती है, साल में एक बार होती है, हर एक का अलग अलग स्केड्यूल होता है, लेकिन हमारी एग्जाम तो हर रोज है, हर पल है, हर रोज इम्तिहान है या नहीं? तो हमारा हर रोज इम्तिहान है, तो हर रोज हमको रिमाइंडर चाहिए कि अगर किसी पर कोई बीमार है तो हम उसको याद दिला दे। ये तो अल्लाह ने फरमाया ही है ना कि वो आजमाएगा, तुम सब्र करोगी फिर भी अल्लाह से राजी रहोगी, अल्लाह उसका अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो शिकवा करोगी तो इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम गिर गए, हमारा कोई नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, जान का नुकसान, औलाद का नुकसान, एनीथिंग एवरीथिंग इज अ टेस्ट। तो हमारा हर रोज टेस्ट है, और ये टेस्ट खत्म कब होगा? ठीक है, स्कूल में टेस्ट होती है, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के एंड पे एक बेल होती है, बेल बजती है, योर टाइम इज अप। हमारी वो बेल बजेगी मौत पर, और वो हमारा होगा टाइम अप, तब एग्जाम खत्म। और उसके बाद जो शुरू होगा वो हम पीछे पढ़ चुके कि कब्र में क्या होगा, और फिर अब फरमा दिया कि आखिरत में क्या होगा। और जो नाफरमान है, जो अल्लाह को भुला देते, वो सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो हर रोज एग्जाम किस चीज का देना है? अभी सर्कल कर लीजिए ये वर्ड ताअमलून। हर रोज अमल का टेस्ट है, हर रोज अमल का एग्जाम है, इम्तिहान है कि मैं अमल कैसे करती हूँ। अब पता तो चल गया कि एग्जाम अमल का है, हर रोज है, और हर एक का क्वेश्चन पेपर भी अलग है। मेरा टेस्ट अलग है, आपका अलग है, सुरैया का अलग है, तबस्सुम का अलग है, शमीम का अलग, एवरीबडी, हर एक का यूनिक क्वेश्चन पेपर है। अभी इसमें भी हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को रिमाइंडर्स देते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या करता है शैतान? हमारे साथ लगा हुआ है ना, वो हमें नेक अमल ना करने के एक्सक्यूजेस दिलवाता है। फिर अगर हमें कोई रिमाइंड करता है तो क्या होता है सुरैया, कि अगर समझो सुरैया ने मुझे याद दिलाया कि बाजी ये तो हमारा इम्तिहान है, हमें तो सब्र करना है, तो मैं बोलूंगी क्या फायदा सब्र करने का, क्या फायदा इतनी इबादत करके, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा ही किया, यही क्यों हुआ, मैं क्यों बीमार हुई, मेरी बच्ची क्यों बीमार हुई, अब मैं नहीं करूंगी। सो ये अल्लाह के साथ लड़ाई करने खड़े हो जाते हम लोग, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए मेरा अब नेकिया करने को दिल नहीं करता। ये सारे एक्सक्यूजेस शैतान दिलवाता है हमको। इसीलिए हमें ऐसे लोगों के साथ, ऐसी कंपनी में रहना है और ये रोल प्ले करना है, क्योंकि सूरह मुल्क में भी हमने क्या पढ़े कि वो जहन्नम का दारोगा भी पूछेगा। क्या पूछेगा जहन्नम का दारोगा? किसी को याद है? सूरह मुल्क रोज पढ़ते, अरबिक में कोई बताएगा मुझे क्या कहेगा जहन्नम का दारोगा? सना बोलो।
बाजी अरबिक नहीं याद है, सॉरी। नहीं नहीं, अरबिक में चाहिए मुझे। हमने अब भी सूरह मुल्क कितने दिनों तक पढ़े, जरा मुझे बताओ। 1 महीने के ऊपर तक हम लोग सूरह मुल्क पढ़ रहे थे। अरबिक में कौन बताएगा मुझे? जहन्नम का दारोगा क्या पूछेगा जहन्नमियों से? किसी को भी नहीं याद है अरबिक में? आप लोग को कुरान नहीं पढ़ाना है, रिमाइंडर्स कैसे देंगे? अच्छा चलो उर्दू में बता दो सना। बाजी क्या कोई तुम्हें डराने बताने वाला नहीं आया था इससे पहले? वेरी गुड। क्या तुम्हें खबरदार करने वाला कोई नहीं आया था? अलम यातिकुम नजीर। अभी कब से नजीर नजीर कर रहे हम लोग कि क्या तुम्हारे पास कोई रिमाइंडर देने वाला नहीं आया था, खबरदार करने वाला नहीं आया था? यही तो टॉपिक पे हम लोग 1 घंटे से बात कर रहे हैं कि हमें अब एक दूसरे को रिमाइंडर्स देने हैं ताकि हम अल्लाह से ये कह सके कि अल्लाह आए थे मेरे पास, रसूल आए थे, किताब भी आई थी, लेकिन मेरे जो साथी थे वो भी मुझे रिमाइंड करते थे, तो उनको भी अजर, मुझे भी अजर। मैं किसी को रिमाइंड करूं तो मुझे भी अजर, और हम सब बच जाएंगे उस जहन्नम की आग से। हम उस अजमईन में शामिल नहीं होंगे कि जिन्नात और इंसान को मैं भर दूंगा जहन्नम में। हम बचना तो चाहते हैं लेकिन कोशिश हमारी कुछ भी नहीं है, तो कोशिश हम मिलजुल कर करेंगे। क्या अकेले जन्नत में जाएंगे बताओ? अकेले जन्नत में जा सकते, जाना चाहते घर वालों को, साथियों को छोड़कर, फैमिली को? नहीं बाजी। हाँ, और क्या सब मिलके जहन्नम में जाना चाहते? अल्लाह ऐसा ना करे बाजी। तो अल्लाह क्यों करेगा? अभी अल्लाह ने बता दिया, मुझे कोई शौक नहीं है, तुम्हारे अमल है, तुम भूल गए मुझे। सो वी विल हैव टू वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। दैट्स व्हाई हम लोग इतना टाइम ले रहे हर आयत पर, ताकि अमल की बात हो, ताकि हम सुधरे, हम समझे, हमें सॉल्यूशंस मिले। वरना हमारे अमाल ऐसे है नहीं कि हम सब जन्नत पहुंच जाए। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से डायरेक्ट जन्नत तो नहीं मिलेगी, बीच में जहन्नम क्रॉस करनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। चले यहाँ पर रुकते इंशाल्लाह, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे की आयत तो सुभान अल्लाह, ये है सजदे वाली आयत, और ये आयत कोई इतने जल्दी हमारी कंप्लीट भी नहीं होगी, इसमें बहुत मॉरल से हमारे लिए। अब अल्लाह ताला इस आयत में हमें सच्चे मोमिन की निशानी बता रहे हैं कि सच्चा मोमिन कैसा होता है। हाउ इज अ ट्रू मोमिन, जानना चाहते हैं आयत 15? और क्या सच्चा मोमिन बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? प्लीज जरा हाथ उठाएं। क्या हम लोग सच्चे मोमिन बनना चाहते हैं? माशाल्लाह हाथ ऊपर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और पक्का मोमिन बना दे। इस आयत के मुताबिक आयत 15 पर चलते हैं। इन्नमा बेशक, युमिनु बेशक ईमान लाते हैं, बेशक ईमान लाते हैं, बी आयातिना हमारी आयात पर, हमारी आयात पर ईमान लाते हैं। कौन? अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब, ज़ुक्किरू जब याद दिलाए जाते हैं, जब जिक्र किया जाता है, जब जिक्र किया जाता है, याद दिलाए जाते हैं, बिहा साथ उनके। हा किसके लिए आया है? बिहा हा आया है अल्लाह की आयात के लिए। फिर से देखिए, इन्नमा, देखिए अगर आयतों पर गौर नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास करने नहीं आए हम यहाँ पर, और हम लोग कोई दूसरी फालतू की बात करने नहीं आए हैं। हम अल्लाह का कलाम लेकर बैठे हैं, तो अल्लाह के एक एक वर्ड पर हमको गौर करना है। भले आज पूरी आयत नहीं समझेगी, लेकिन कुछ वर्ड्स तो समझे इंशाल्लाह। कोई एक ऐसी आयत हो कि वो छू जाए हमको। सो प्लीज प्लीज फोकस ऑन द वर्ड्स। मैं 1 घंटा बक बक करती रहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पर करना है? आप लोग बताएं, मेरे वर्ड्स पर या अल्लाह के वर्ड्स पर?
आयत पे बाजी। तो क्या कहाँ है हमारा फोकस? आप लोग क्यों नहीं पूछते हो कभी भी? कोई नहीं पूछता है कभी भी कि बाजी ये वाले वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, जरा इसको फिर से बताइए। कभी भी ऐसा नहीं होता है। व्हाई लाइक दैट? अल्लाह के वर्ड्स में फोकस करेंगे। फिर से देखिए, इन्नमा बेशक, युमिनु, बेशक का मतलब क्या है? देयर इज नो डाउट। ईमान लाते हैं कौन? भी आयातिना, किस पर लाते हैं ईमान? हमारी आयात पर, अल्लाह की आयात पर। अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा, जब, ज़ुक्किरू, जब याद दिलाए जाते हैं, जब जिक्र होता है, बिहा, साथ उनके। हा किसके लिए आया है? अल्लाह की आयात के लिए, कि जब अल्लाह की आयतों के का जिक्र होता है, तो अल्लाह की आयात का जिक्र होते ही क्या करते हैं? वो खर्रू, खर्रू, वो गिर पड़ते हैं। खर्रू, बोलिए खर्रू, वो गिर पड़ते हैं। कौन बोलेगा? खर्रू, वो गिर पड़ते हैं। वेरी गुड। कैसे गिर पड़ते हैं? चक्कर आके नहीं गिरते, सुजदों, सजदा करने वाले होते हुए, यानी वो सजदे में गिर पड़ते हैं, झुक जाते हैं। अल्लाह की आयत का जिक्र सुनते ही वो सजदे में गिर पड़ते हैं, झुक जाते हैं। वसब्बहू, और वो तस्बीह करते हैं। सिर्फ सजदा ही नहीं करते, फिर सजदे में जाकर अल्लाह से शिकायत नहीं करते, सजदे में जाकर तस्बीह करते हैं। कौन सी तस्बीह करते हैं? सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह है जो हम सजदे में करते हैं। और क्या करते हैं? बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब के हम्द के साथ। हम्द का मतलब क्या होता है? तारीफ। सिर्फ तारीफ? क्या तारीफ हम्द का मतलब सिर्फ तारीफ नहीं, हम्द का मतलब तारीफ और शुक्र, तमाम तारीफ और तमाम शुक्र करते हैं अल्लाह का। कहाँ करते हैं ये सब कुछ? क्या क्या करते हैं सजदे में? बताओ। तस्बीह करते हैं, उसकी हम्द करते हैं अपने रब की। और हम्द का मतलब क्या लिखा आपने? तारीफ और शुक्र। और सिर्फ तारीफ और शुक्र नहीं, तमाम तारीफ और तमाम शुक्र। तो यहाँ पर कहीं शिकायत लिखा है क्या? समझ में आ रहा है? कहीं शिकायत वर्ड मिलता है? नहीं बाजी। हाँ, और हम लोग सजदे में जाके क्या करते हैं? क्या हम तारीफ करते हैं? क्या हम शुक्र करते हैं? क्या तस्बीह करते हैं? क्या हमारी शिकायत होती है? वी हैव टू चेक। वहुम, और वो सब, ला यस्तकबिरून, ला यानी क्या? नहीं, यस्तकबिरून में तकब्बुर वर्ड आता है, नहीं वो तकब्बुर करते, दे आर नॉट प्राउड। और ये है सजदे की आयत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या फरमाया अल्लाह ने? इस आयत पर हम लोग कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये सजदे तिलावत की आयत है। तो सजदे तिलावत के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या जानते हो आप कि अगर कुरान में सजदा आए लिखा हुआ तो फिर वो आयत क्या हो जाती है? सजदे तिलावत की आयत। अब इसके बारे में आप लोग मुझे कुछ बता सकते हो? एनीबडी, क्या क्या जानते हो आप लोग सजदे तिलावत के बारे में? बाजी ये आयत आई तो हम सजदा करें तो अच्छा है, लेकिन सुना नहीं है बाजी। ओके, और कोई? सना? बाजी जब हम रिसाइट करते कुरान और ये आयत आती तो कुरान बंद करके नॉर्मली वी डू सजदा, वी पुट द जानमाज एंड डू सजदा। ओके, शगुफ्ता? हम लोग सजदा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कभी ऐसी सहूलत ना हो तो सर झुकाना चाहिए। ओके ओके, चले। तबस्सुम, बाजी, आपको बोलना है? हाँ, अगर सजदा तिलावत करे तो शैतान बहुत रोता है बोल के सुनी बाजू में। वेरी गुड, सही सुना आपने, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो देखिए अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि वो मोमिन सच्चे होते हैं जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, अल्लाह की आयत सुनते हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं और सजदे में अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। तो हमें अल्लाह को उसी वक्त ये बताना है कि अल्लाह मैं भी उन सच्चे मोमिनों में शामिल हूँ, मैंने अभी अभी तेरा जिक्र सुनी और तूने फरमाया कि मेरा जिक्र सुनते ही सजदे में गिर जाते हैं, तो अल्लाह ले मैं भी सजदे में झुक गई, मैंने भी झुका दिया अपना सर और मैंने भी कर दी तेरी तस्बीह तेरी तारीफ, और हाँ अल्लाह मैं तकब्बुर नहीं करती। दिस इज लाइक अ कन्वर्सेशन विद अल्लाह। ये ऐसा ही है कि समझो आपके बच्चे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, बहुत बिजी है, एंजॉय कर रहे हैं, और फिर मम्मा आए और मम्मा कहे कि कौन मेरा बच्चा है जो मेरी बात मानेगा, जल्दी से मेरा ये काम कौन करके देगा, वो मेरा अच्छा बच्चा। तो वो बच्चा क्या कहे, क्या मम्मा आई बोली ठीक है मैंने मानी, नहीं मानी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कोई भी बच्चा उनमें से ऐसा ना करे तो वो कैसे है फिर वो बच्चे सारे, कितना तकब्बुर है उनके अंदर, क्या उनके अंदर अल्लाह की कोई अपने माँ की कोई मोहब्बत है, नहीं है। लेकिन अगर एक भी बच्चा ये कहे कि हाँ मम्मा मैं हूँ तुम्हारी अच्छी बच्ची, बताओ मुझे क्या काम है मैं कर देती हूँ, सेम थिंग तो अल्लाह ताला फरमा रहे यहाँ पे। अब आप देख लीजिए कि सजदा तिलावत फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लिख लीजिए सजदा तिलावत फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। मुस्तहब का मीनिंग लिख लीजिए पसंदीदा, पसंदीदा है। दैट मीन्स अगर आप सजदा करो तो अल्लाह को बहुत पसंद आएगा, और अगर ना करो तो कोई गुनाह तो नहीं होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत करते और सजदा तिलावत की आयत आती तो कभी वो सजदा करते और कभी सजदा ना करते, बिकॉज ये फर्ज नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी इसकी मीनिंग समझने के बाद अगर मैं ना झुकूं तो फिर ये क्या होगा, मेरा तो तकब्बुर ही हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। और जैसे तबस्सुम ने बहुत अच्छे से बताया, तो हदीस का मफहूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान क्या करता है, शैतान जब देखता है बंदे को सजदे तिलावत में झुकते हुए तो शैतान ये कहता है, वो कहता है मुझे सजदे का हुक्म हुआ था, मुझे भी सजदे का हुक्म हुआ था लेकिन मैंने नहीं किया, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ और ये कर रहा है, तो इसी सजदे की वजह से वो जन्नत नसीब होगा और मेरे इसी तकब्बुर की वजह से मैं जहन्नम की आग में जलूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो पछताता है, रोता है। अब आप सोच लीजिए कि चाहे ये फर्ज हो, कंपलसरी हो या ना हो, तो भी मुझे सजदा करना है या नहीं करना, दैट इज हमारी मर्जी। वेरी गुड। ये यहाँ पर क्या लिखा है जरा पढ़ दो सुरैया। जब हम सजदा तिलावत करते हैं तो शैतान बहुत रोता है और चला जाता है। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इसके लिए जब भी हम सजदा तिलावत करें तो ये जहन में रखें कि बदमाश शैतान बहुत रो रहा है, उसको रुलाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब इसके बारे में कुछ रिवायत भी करती हूँ आपके सामने पेश कि एक तो है सजदे तिलावत, फिर इसका तरीका भी देख लीजिए कि आपको अगर उसी वक्त आपने कुरान साइड में रख के सजदा कर लिया, वेरी गुड। अगर आपकी कुरान की तिलावत होने के बाद आप कर लो तो भी वेरी गुड। थोड़ी देर बाद याद आ जाए और तब कर लो तो भी वेरी गुड।
اور نہ کرو دیٹ از آلسو اوके, आपको कोई गुनाह नहीं होगा. जब आप सजदा तिलावत करो तो एक ही सजदा करना है, ये सुन्नत तरीका है. आपको 2 सजदे नहीं करने हैं जैसे कि हम नमाज में 2 सजदे करते हैं. तो सजदे तिलावत के लिए एक सजदा इज इनफ, और वही तरीका है सजदे का. अच्छा, जब हम तरावी की नमाज बाजमात पढ़ते हैं ना, और तब सजदे तिलावत की आयत आती है, तो इमाम साहब क्या करते हैं कि तिलावत जैसे उस आयत की होती है वो उसी वक्त अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाते हैं. हम भी उनके पीछे अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाते हैं और फिर खड़े होकर वापस आगे की तिलावत कंप्लीट करते हैं. लेकिन जब हम घर में तिलावत कर रहे हैं तो आपको अल्लाहु अकबर कहने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट में सजदे में जाओ और सजदा कर लो. अब सजदे में आपको क्या पढ़ना है, आप सुबहान रब्बियल आला 3 टाइम्स पढ़ लो, ये भी सही है. इसके अलावा हमें और भी कुछ मसनून दुआएं मिलती है, ये वाली आप स्क्रीन पर देख रहे हो. सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही, ये ऑप्शनल है. फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह, मैंने झुका दिया अपने चेहरे को. वजहिया सजदा यानी क्या, झुका दिया. वजहिया अपने चेहरे को, लिल्लज़ी उस जात के लिए, उस अल्लाह के लिए, खलक़हु जिसने पैदा किया मुझे, वसव्वरहु और उसने सवारा मुझे, वशक्क समअहु और उसने होल बनाया, मेरे कान में होल बनाया, वबसरहु और मेरी आंखों में भी होल्स बनाए, यानी आंख और कान बनाए, बिहौलिही व कुव्वतिही अपनी कुव्वत के साथ. तो फिर फतबारकल्लाहु, फिर बड़ा बाबरकत है अल्लाह, अहसनुल खालिकीन वो बेहतरीन क्रिएटर है, बेहतरीन है हमारा खालिक. तो ये अगर याद नहीं भी होती तभी भी इसे थोड़ा 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 करके याद कर लीजिए. विथ मीनिंग याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा. अभी मैंने आपको मीनिंग के साथ बताया है, विथ मीनिंग आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा इंशाल्लाह. फिर आप लोगों को अभी ये एक ही होमवर्क मिलता है कि आज आपको ये वाली दुआ आज कल परसों, आज से आप कोशिश कर ले इसे याद करने की और थोड़ा थोड़ा याद कर लिए. फिर से देखिए, सजद वजहिया झुका दिया अपने चेहरे को मैंने, लिल्लज़ी लिए उस जात के, खलक़हु जिसने मुझे पैदा किया, वसव्वरहु और सवारा उसने मुझे, शक्क का मतलब होता है होल करना, समअहु मेरे कानों का, वो बसरहु मेरी आंखों का, बिहौलिही व कुव्वतिही पूरी कुव्वत और ताकत के साथ, फतबारकल्लाहु फिर बड़ा बाबरकत है अल्लाह, अहसनु वो सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा अच्छा, खालिकीन में से है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो विथ मीनिंग थोड़ा थोड़ा याद करें, ये आपका होमवर्क होगा अगर आप याद कर ले. और एक आपको ये बताऊं कि हिस्नुल मुस्लिम नाम की एक किताब मिलती है. हिस्नुल मुस्लिम इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, द फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम्स, द फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम्स. और उस किताब में तमाम सुन्नत दुआएं, नमाज का सुन्नत तरीका, नमाज के अंदर की मसनून दुआएं, अज़कार, वो सब कुछ उसमें ऑथेंटिक है. और अगर आप वो किताब लाएं विथ मीनिंग वाला, जो भी लैंग्वेज में आप समझते हो, तो फिर वो विथ मीनिंग इजी हो जाता है याद करना, पढ़ना, समझना, ताकि हमारी नमाज, हमारी इबादत मसनून तरीके से हो इंशाल्लाह.
آگے اس آیت کو اور سمجھنا ہے ہم کو، وہ ہم کل کریں گے، کیونکہ سجدہ کیا ہے، اتنی خاص عبادت ہے، اور اس سورہ کا نام بھی سجدہ ہے، تو اسے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ابھی ہم لوگ دعا پڑھنے کے بعد سب لوگ سجدہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے سجدے کی آیت پڑھی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔